Good morning, sir. Good morning. Okay. So in this chapter, acids and bases. So we have covered the various properties of acids. Okay. So randomly, I will ask a few things about the properties of acids. Can you give one example of a tribasic acid? बोले हाँ बोलिए. सर फॉस्फेरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड जो है फॉर्मूला इज H3PO4 H3PO4. phosphoric acid. Okay. So phosphoric acid is having how many ionizable थ्री हाइड्रोजन आर आयोनाइज three hydrogens are ionizable. Because the three hydrogens are ionizable, therefore it is a tribasic. Whereas the uh, carbonic acid, H2CO3 हाँ, carbonic acid, it is, Sir, weak mineral acid. it is weak mineral acid. What is its basicity? Is it monobasic, dibasic, tribasic? सर डायबेसिक Sir, diabasic Sir, होता है. sir, diabetic. Dibasic. Okay. So the basicity of an acid is how much ionizable hydrogens can come out from that one. How many H plus ions it can release. Those H plus ions will react with water to form the hydronium ion. Okay. सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना रहता है वो सारा हाइड्रोजन आयोनाइज होता होगा ना Already we have discussed in our previous class. We are, सर ये ट्राइबेसिक एसिड बोरिक एसिड भी है ना yes, what is the boric acid formula? H3PO3 H3BO3. H3BO3 boric acid. So when you say H3BO3, all the three hydrogens are going to get ionized. So if three hydrogens are getting ionized, it should be the tribasic. If three are getting ionized, but in the case of the what we say, एसिटिक एसिड for example, acetic acid is there. So what is the formula acetic acid? सर CH3COOH Acetic. First is a formic acid is only COOH. Formic acid. Acetic acid will have one methyl group CH3 followed by the carboxylic group. Acetic acid. Though there are the four hydrogens, only the hydrogen in this carboxylic group is ionizable. सर फॉर्मिक एसिड में HCOOH होता है ना You will have another this one that हाँ is सर एक और हाइड्रोजन होता है सर एक yes, पहले होता है yes, it will is there because for this one there is the क्या बोलते हैं उसको tetravalency of carbon should be satisfied. Okay, so it will come like this COH. तो 2 plus 1 3 ही bonds हुआ, एक bond और चाहिए तो हम लोग उस पर हाइड्रोजन लगा देंगे. Now this will be the formic acid. Okay, now next we'll move to the chemical properties. Okay, the chemical properties of the acids. Among the chemical properties of acids, okay, I think except Ayushwan is only not there except no. Okay.
So chemical properties of acids, इसको आप क्या करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे कि बीच में, सर हम लोग कौन से पेज नंबर में हैं? दिस इज ए पेज 41. 41. ओके. So let us see first the sequence. Okay, reaction with active metals. So can you give examples? Active metals. Sodium Sir, plus calcium. Calcium is not so active. Calcium is slow. मैग्नीशियम, सर जिंक, आयरन, सर आयरन विथ H2SO4 सर एग्जांपल में दिया था. हाँ. So सर मैग्नीशियम, जिंक. you see, is all of these are active. Active is something, is a relative term, but you know the most active elements are in which group? फर्स्ट ग्रुप, Yes, yes, first group. So first we have to give the names of the first group elements whenever we are telling that which are the most active metals. Okay, so sodium, potassium. सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. Yes, lithium, sodium, potassium. As you go down, they also become more reactive, but these are not so common. We are not using so commonly. So what happens is, when the active metals, they react with acid, they will produce the metallic salts and hydrogen. Okay, and how fast they are reacting, it is different. Okay, so this one we have studied in class 9 also, the reactivity series, activity series. Okay, तो activity series में जो है आपका वो लिस्ट था, और रिएक्शन विथ एसिड्स, विथ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ऐसे करके सब था उसमें. तो देखिए इसमें क्या है, active metals like potassium, sodium and calcium, and moderately less active metals like magnesium and zinc will produce metallic salts and hydrogen. So here if we take magnesium and react with HCl, we should get salt plus release the hydrogen gas. So hydrogen gas is released with which kind of metals? For highly active metals. Highly active metals. So more these are all generally they are coming under group 1, group 2. Some of them like zinc and iron, they will also produce the hydrogen. Okay, so magnesium example is there. हम लोग मैग्नीशियम को सर H2SO4 के साथ नहीं रिएक्ट कर सकते हैं. कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे मेन चीज आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ये है आपका एक्टिविटी सीरीज. तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका उसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, they are going to be more reactive than hydrogen or less reactive than hydrogen? So more reactive. हाँ, so the activity series is arranged in the increasing order of reactivity or decreasing order of reactivity? So increasing order, sorry, decreasing order. Decreasing order of reactivity. Okay, so what is happening from top to bottom, the reactivity is going to decrease. Okay, and when we come from top to bottom, like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, then comes the hydrogen, and below hydrogen we have this copper and Hg and mercury, silver, gold, platinum. As far as possible, please try to remember this activity series. It will be very useful in guessing. If you don't know the answer also, you can guess what is going to be the reaction. So here what is happening, these metals which are above the hydrogen, they will be able to displace the hydrogen from the acid. Now HCl is there, magnesium is there here.
So magnesium is more reactive than hydrogen. So what it will do, it will displace the hydrogen. Okay, it will displace the hydrogen, it will react with chlorine to form MgCl2 and release the hydrogen gas. Okay, we will balance the equation, so it will come to 2HCl. Okay, so similar way, this zinc is there. Okay, iron is there. These are all above hydrogen, so they will all react with the acid to form the salt and the hydrogen. So now you understood what is the logic here, iron. So this same reaction can be repeated with any of the other metals like sodium, potassium, calcium, aluminium. You can repeat with any of these metals. And acid also you can repeat. Okay, but here among the acid एक exception है. क्या exception सर ये है? सर ये एक्टिविटी सीरीज रटना होगा या कोई तरीका है याद करने के लिए? देखो आप नेट में खोजोगे ना, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, कुछ कुछ कहानियाँ टाइप के रहेंगे ऐसे वैसे, बस सबका अपना अपना तरीका रहता है याद करने का। हाँ, वो चॉइस आप देख लो, क्योंकि मुझे खुद ऐसा कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक इसमें नहीं पकड़ में आया। सो ईच वन कैन यू कैन डेवलप योर ओन वे, थिंक अबाउट इट, यू कैन डेवलप। Okay, so this basic is there. The reactivity is decreasing from top to bottom. Okay, reactivity is decreasing from top to bottom. तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन हम लोग रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं लिख रहे हैं। Okay, we are not writing. Why? Because what is going to happen when the nitric acid is going to react with the metal, what it will do, it is a highly oxidizing acid. Even it is the concentrated or dilute HNO3 or concentrated H2SO4, both are strong oxidizing agents. ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। सर ये नॉर्मल H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल, हाँ सर, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड क्यों दिखता है? हाँ, concentrated and dilute, there are the two things. Concentrated and dilute depend upon that how much water you are putting in that one. हाँ, वो तो concentration की बात है ना। तो सर अगर वाटर ज्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा। हाँ, तो concentrated H2SO4 कैसे हो जाएगा जब पानी ज्यादा रहेगा? तो जब पानी कम रहेगा तब होगा। हाँ, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको ना आप कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेगा, पानी में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो वो डाइल्यूट एसिड होगा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये चीज़ आपके थियरी प्रैक्टिकल दोनों में ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि जो मेटल्स है, रिएक्टिव मेटल्स है या कम रिएक्टिव मेटल्स मीन्स दोज विच आर अबव हाइड्रोजन, among that this acid is not going to produce the hydrogen gas. Why? या ऑप्शंस में दे देगा which of the following acids will not release hydrogen from the reaction with metals. So this one reason will be that because there are the strong oxidizing agents, ये जो हाइड्रोजन बनता भी है उस हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। सर अगर आंसर में सर मतलब ऑप्शन में डाइल्यूट नहीं लिखा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड तो मतलब सर मगर अभी आप क्वेश्चन बोले ना विच ऑफ दिस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, तो सर एग्जांपल मतलब ऑप्शन में डाइल्यूट नहीं लिखा हो या कॉन्सेंट्रेटेड तो हाँ, तब HNO3 अगर ऑप्शन में है तो Yes, पहला उसी को टिक करना है। और सर H2SO4 भी हुआ तो HNO3 को फर्स्ट ऑप्शन,
ओके सर। H2SO4 को आप टिक करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, डाइल्यूट H2SO4 फिर भी चल जाता है। सर हम कंफ्यूज नहीं हो इसलिए फिर से पूछ ले रहे हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंफर्म हो ले रहे हैं। या No, sir, it is losing of electrons. आयुष you tell me. सर वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बट प्रिंस टोल्ड दैट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गलत क्यों है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, एजेंट बोले सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किए सर। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स गेनिंग मतलब ये क्या बोलते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच टेंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मेरे हिसाब से। If the substance is accepting the electron, that means it is getting reduced. हाँ सर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सर, ये कंफर्म हो रहे थे। Itself it is getting reduced, it will be a oxidizing agent. हाँ सर कंफ्यूज तो नहीं हो इसलिए एजेंट में और ऑक्सीडाइजिंग में तो अंतर हो गया सर। हाँ, ऑक्सीडाइज जो हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में अंतर है, दोनों ऑपोजिट हो जाता है। जो चीज ऑक्सीडाइज होगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो चीज रिड्यूस होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे HNO3 is a strong oxidizing agent, concentrated H2SO4 is a strong oxidizing agent. It will convert the hydrogen into the water. Exception is the two metals, one is a magnesium and other is the manganese. With a dilute HNO3, okay, dilute HNO3, dilute मतलब less than 1%, it will convert it into, for example, manganese nitrate, okay, and it will release the hydrogen gas. Okay, only exceptions is magnesium and manganese. Okay, next, reaction with bases, that is a neutralization reaction. You know that acids will react with bases. To form salt and water. So neutralization means it should form only salt and water and nothing else. Any other product should not form. So here, for example, copper oxide is there, that is the cupric oxide. Cupric oxide is reacting with the sulfuric acid to produce the copper sulfate, CuSO4 plus water. So this is the reaction of the metal oxide with the acid to form the, now you see, copper, whether it can replace the hydrogen or not. हाँ सर। कहाँ है? नहीं सर, नहीं सर, it cannot replace hydrogen because it is less reactive. This is copper is less reactive, so because it is less reactive, it should not be able to replace the hydrogen. But what reaction you are seeing here, that copper is Hydrogen is displaced. Yes sir. this one, and H2O is forming. So whether it is the correct reaction or not, is it possible or not? Exception. Exception. Yes sir. सर ये एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से पहले जो एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकलता है और नीचे वाले में वाटर भी निकलता है। सर जैसे पहले का रिएक्शंस जो मतलब एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर था, उसमें हाइड्रोजन सिर्फ H2 रिलीज हो जा रहा था, और एक्टिविटी सीरीज के नीचे जैसे कॉपर है उसके साथ मतलब कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है साथ में। Okay. So what is the point here? The point is the reaction of evolving the hydrogen gas. Acid reacts with metal to release the hydrogen gas, salt and hydrogen gas. This will only take place with the more reactive elements. The less reactive elements, what they will do? सर वो लेस Water. रिएक्टिव सर रिएक्ट ही नहीं करेगा सर। जो less reactive है वो तो
आपने यूज किया H2SO4. Okay, when you are using H2SO4, it is replacing according to this reaction. So you think and you tell me. Okay, later you mark this point. You mark this point. You think why it is happening and you let me know later. Another reaction is sodium hydroxide. Sodium is anyway higher in the activity series, and here it is reacting with nitric acid. Nitric acid is strong oxidizing agent. So this is very easy to guess. It will easily replace the hydrogen. Okay, so it will become sodium NaNO3, sodium nitrate. Okay, and here because it is already strong oxidizing agent, anyway it will form the water. So this hydrogen and this OH, H2O. Okay, you think about this reaction and सर वहाँ पे सर सिर्फ एक कॉपर मेटल नहीं है, कॉपर ऑक्साइड है। तो एक मिनट सर, हम एक बार चेक कर लेते उसके बाद बोलते। later. Okay, you think about it and you tell me. You are going in the right direction only, but you let me know later. Now the action of the dilute acid on salts. So when we are talking about the dilute acids, डाइल्यूट का मतलब अभी हम लोग ने देखा कि कम एसिड पानी में है। ओके, यानी आपने एसिड का 1 लीटर लिया, 2 बूंद उसमें आपने एसिड डाल दिया, वो डाइल्यूट एसिड है। क्या डाइल्यूट एसिड फॉर एग्जांपल HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने केवल 2 बूंद लेके 1 लीटर पानी में डाल दिया। अब वो जो डाइल्यूट HCl बना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा? सर उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? बिकॉज उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होता है उससे कोई मतलब नहीं है कि वो तुम कॉन्सेंट्रेटेड हो या नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो अपना H+ छोड़ सकता है। एसिड का डेफिनेशन ही वो है ना कि वो Yes. एबिलिटी टू रिलीज H+। अगर H+ वो रिलीज नहीं कर सकता है तो वो एसिड नहीं है। अगर वो मोर देन 90%, मोर देन 30% से ज्यादा अगर उसका आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी HCl का मॉलिक्यूल H+ प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो देन इट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl में मोर देन 80%, 90% के ऊपर होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। आयोनाइजेशन, यानी कितना मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हुआ, इससे हम लोग को पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बस पानी में डाल देने से, उसको डाइल्यूट कर देने से क्या उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी? आयोनाइज होने की प्रॉपर्टी बदल जाएगी? नो सर। आयोनाइज जैसा उसका है प्रॉपर्टी है आयोनाइज होने का, तो उसी तरीके से आयोनाइज होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट बोला गया कि एसिटिक एसिड जो है अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड भी लेते हैं, ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा डाइल्यूट HCl से कंपैरिजन में। डाइल्यूट HCl is still a strong acid and concentrated acetic acid is still a weak acid। क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है इसमें मुश्किल से समझिए 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड रहने से मुश्किल से समझिए 2 या 3 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज हो रहे हैं। हार्डली 2-3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर गेटिंग आयोनाइज्ड आउट ऑफ 100। ये डाइल्यूट होने के बावजूद इसमें 90% मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। दिस इज स्टिल ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इट डजंट डिपेंड अपॉन वेदर इट इज ए डाइल्यूट और इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड। पॉइंट समझ में आ गया? सर तो डाइल्यूट का मतलब यही ना हुआ कि पानी में डाल देना सर। बस उतना ही है। डाइल्यूट का मतलब है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका क्वांटिटी आपने कम लिया।
भैया एक बाल्टी हम एसिड लेंगे तो वो जो है HCl कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, और जो है हम एक छोटे से गिलास में लेंगे तो वो क्या डाइल्यूट माना जाएगा? नो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वो तो उसका अपना प्रॉपर्टी है। H प्लस तो छोड़ने की प्रॉपर्टी, देने की प्रॉपर्टी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो पानी डालने से कम या ज़्यादा डालने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सर मतलब अगर पेपर में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या फिर डाइल्यूट रहेगा तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा ना? देखिए रिएक्शन जो है, रिएक्शन एक एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का फास्ट रहेगा और डाइल्यूट एसिड का कम रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग आयोनाइज्ड। अभी अब समझिए एक बच्चा है, वो गेम्स में बहुत टॉप है, 10 गेम्स होते हैं, 10 गेम्स में वो जब पार्टिसिपेट करता है तो कम से कम 9 गेम में तो टॉप कर जाता है, कोई उसको बीट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि कंपटीशन हुआ ही नहीं उतना, 10 गेम्स नहीं हुए भैया, 5 ही गेम्स हुए कंडक्ट हो पाए, तो अब क्या उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा? नो सर। नहीं ना, उसका कैपेसिटी क्यों कमाना? क्वांटिटी आपने घटा देने से उस मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में जब आप पेपर के साथ एसिड को रिएक्ट कर रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स आप दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल देंगे तो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप अगर कम मॉलिक्यूल दोगे तो धीरे से होगा। क्या इसका ये मतलब है कि वो एसिड आयोनाइज नहीं हो रहा था? एसिड आयोनाइज हो रहा था अपने ही स्पीड से। तो कंफ्यूज इधर आपको ये नहीं होना है, यहाँ पे देयर इज द डिफरेंस बिटवीन strong and weak acid. It depends upon the ionization. It is a inherent property of that compound of that acid. जबकि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्वांटिटी टर्म है। ओके, आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को कोई प्रॉपर्टी मानते हो क्या? एसिड का वो कोई क्या प्रॉपर्टी है? नो सर, नॉट अ प्रॉपर्टी। Not a property of the acid, but ionization is a property of the acid, and based upon that you can say that it is a strong acid or weak acid. Just because in your laboratory you took concentrated acetic acid, and in my laboratory I have dilute acetic acid, doesn't make your acetic acid a strong acid, no? It is still a weak acid, whether it is in your lab or my lab, whatever quantity you may have. Got the point? यस सर। So next, the decomposition of hydrogen carbonates and carbonates. Decomposition reaction, dilute acid का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो पहले कार्बोनेट लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 is reacting with acid HCl to form calcium. Will replace this one or not? Hydrogen, यस सर। it will replace, because calcium is in the reactivity series ऊपर में है, reactivity series में sorry, calcium reactivity series में ऊपर में है, so it will form CaCl2 compound salt। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 will remain. So the gas released is carbon dioxide, water is formed, salt is there. Okay, is this a neutral reaction? Salt and water and carbon dioxide? नो सर, न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ दो ही बनता है। हाँ, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो निकला, यस सर। ये न्यूट्रलाइजेशन
not a neutralization reaction. ये कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट reacting with the acid to form the salt. सर ऊपर जो आप कैल्शियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा है, उसमें भी तो सर CuSO4 सॉल्ट ही है ना सर? हाँ सर, और वही तो सर ये न्यूट्रल। हाँ सर। Reaction with the base, it is giving only salt and water. It is a neutralization reaction. This one also neutralization reaction. But here salt, water and carbon dioxide, not a neutralization reaction. Okay, so dilute acid will react with the carbonate. Okay, ये reaction क्या है? ये reaction हो गया लगभग आप जब चूना में पानी देते हो वो बबलिंग टाइप का बनता है. Okay, so carbon dioxide is released. Okay, so there what is happening is very सर हीट भी रिलीज होता है सर? yes. Here also with the dilute acid also carbon dioxide is releasing. Okay, whether it is a carbonate or bicarbonate in both cases. Okay, next dilute acid के बाद reaction with sulfites and bisulfites. सल्फेट का बताइए, कौन बताएंगे? समय बताइए. सल्फेट फॉर्मूला, सल्फेट आयन का फॉर्मूला बोलिए. समय क्विकली यू हैव टू टेल, not so much time. Use your own one, don't use textbook. Think and say. कैसे निकालोगे आप सल्फेट का? सर हम एक बार ट्राई करें? समय, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. You are don't. सर हाँ। हर्षित, सल्फेट का फॉर्मूला बताइए. आयुष्मान आप बताइए. सर आवाज नहीं आ रहा है मेरा. हर्षित, तुम आर यू सेइंग समथिंग? सर आवाज आ रहा है मेरा. हाँ हाँ, बोलो बोलो. हाँ सर. SO4. सर हम ट्राई करें? हाँ, SO4 सल्फेट. चार्ज बताओ. -2. हाँ, कैसे आपने बताया? आपने रटा हुआ था आपको कि आपको लॉजिकली याद? सर याद कर. सर याद कर. तो मतलब बात कर लिए थे. सर हम बताएं? ओके, दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग कंसंट्रेशन. सर हम बताएं सर? शांत रहो. मोमेंटम क्लासेस. आयुष्मान, सल्फेट आयन आपको याद है फॉर्मूला? हाँ सर. हाँ बताइए. सर SO3 माइनस. कैसे आपको याद है? सर याद की वो शुरू वाले क्लास में.
सर सर हम बोल रहे क्या? सर सल्फेट है सर, 8 है मतलब ज्यादा खाएगा तो SO4 होगा और इस पे चार्ज 2 माइनस रहेगा। सर 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 8 है सल्फेट सर। को सर सल्फ्यूरिक एसिड से आप बोले थे रिलेट करके याद कर लें। हाँ सर, H2SO4 सर, तो दो सर हाइड्रोजन है, SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस। आपको जो कॉमन एसिड है उसका फॉर्मूला याद रखना है। आप अगर क्लास 10 में सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमन ये सब जो एसिड हैं, फास्फोरिक एसिड, ये चार ही तो एसिड हैं कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो क्लास 10 में आपका कोई काम ही नहीं है। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमको नहीं आता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला गलत हो रहा है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा कॉमन एसिड है, तो यहाँ से इमीडिएटली आसानी से आप सल्फेट का निकाल देते हो, दो हाइड्रोजन्स निकाल के SO4 2 माइनस। ओके, दिस थिंग आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, आप प्लीज वॉच, इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज वॉच माय वीडियो, दैट कैटायंस एंड एनायंस नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो। ओके, इसको आप सीरियसली, मैंने कई क्लासेस में बोला है, ये चीज़ अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा टफ होगी। और आप अगर उधर ठीक कर लेते हो, बेसिक्स आपका ठीक रहता है, बाकी का आपको आराम से समझ में आते रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के क्लासेस में आप अगर ढील करोगे, आगे के क्लासेस में आपको दिक्कत बढ़ती जाएगी। प्लीज़ डोंट इग्नोर व्हाट आई एम टेलिंग। पीरियाडिक टेबल, कैटायन एनायन, कल हम देखना चाहते हैं आयुष 1 एंड हर्षित। समय, आई थिंक यू आल्सो वर नॉट एबल टू आंसर, राइट? आई थिंक समय आल्सो। यस सर। ऑफ यू व्हाट यू विल डू इज, हमको ये जो है कम से कम 5 टाइम्स आप लिखिए। व्हाट एवर एनायंस है ना, एनायंस का जो लिस्ट है 5 बार आप लिखेंगे, कल हमको दिखाएंगे। और हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें एनायंस का रैंडम पूछेंगे एंड आई वांट द आंसर्स। ओके, यू वॉच दैट वीडियो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायन एनायन, हमने ऑलरेडी 2 बार अपलोड किया है, उसको भेजा है, आप देखिए उसको और उसको प्रैक्टिस कीजिए। देयर इज नो, इसमें कोई भी कोताही हम नहीं दे सकते। राइट, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। जब ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, तो सल्फाइट क्या होगा? सल्फाइट सर सल्फाइड का सर S2 माइनस होता है सर। सर सल्फाइड होता है सर, सल्फाइड SO3 होता है। सर 2 माइनस सर, SO3 2 SO3 माइनस। 2 माइनस। जब ये 8 है, ज़्यादा खाया, ज़्यादा ऑक्सीजन है, आइट थोड़ा सा एक सर सर ITE और IDE में सर S2 माइनस होता है। सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एग स्मेल, सल्फाइड, आइड। सर इसमें सर S2 माइनस होता है, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सल्फाइट। तो सल्फाइट जो है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट क्या हो जाएगा? ये सल्फाइट है, SO3 2 माइनस, कैल्शियम पे ऊपर क्या चार्ज रहता है? Ca। Ca 2 प्लस। कौन से ग्रुप में है कैल्शियम? सर सेकंड में है सर। इसका 2 प्लस है। तो जो जिस ग्रुप में रहेगा, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? सर 2। तो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दो तो चार्ज बनेगा 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। तो एक तरफ है आपका Ca 2 प्लस और एक तरफ दूसरा आयन है ये वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, SO3। तो कैल्शियम सल्फाइट विल रिएक्ट विद द एसिड HCl to form the calcium chloride CaCl2 and water and sulfur dioxide। तो यहाँ जो गैस रिलीज हो रहा है कार्बोनेट में
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था और सल्फाइट में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी। सो दिस इज अ रिएक्शन। जनरली इस टाइप के रिएक्शन का क्वेश्चन आते रहता है। ओके, इसको याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, फर्स्ट यू फॉलो व्हाट इज देयर। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with HCl to give rise to sodium, here sodium chloride water। सर NaCl और H2O तो सर कॉमन हो जाएगा। हाँ हाँ, ये H2O SO3 कॉमन है आपका। रिएक्शन विद दी सल्फाइट और बाइसल्फाइड, सेम थिंग आप देख रहे हो यहाँ पे भी। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन आ रहा है ना। सॉल्ट वाटर जी कार्बन सर। डाइऑक्साइड, हियर सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो क्या होता है ना, इंडिविजुअली अभी रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं तो अभी अच्छा है, चल रहा है, लेकिन आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो माथा का खिचड़ी बन जाता है ना। इतने सारे रिएक्शन, कोई सल्फेट कोई सल्फाइड कोई हाइड्रोजन कोई कार्बोनेट, पागल हो जाता है आदमी। करना क्या है, उसको किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले हमने बताया एक्टिविटी सीरीज जरूरी है, उसको नहीं छोड़ना है, पीरियोडिक टेबल नहीं छोड़ना है, वैलेंसी नहीं छोड़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटआयन एनायन नहीं छोड़ना है। उसको अगर आप छोड़ दिए तो भैया आपको तो कोई कंपाउंड देख के समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या ये, तो करोगे क्या केमिस्ट्री, कुछ नहीं होने वाला। वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत समय दिया उसके ऊपर, आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, कीप रिवाइजिंग दैट। आई विल आस्क फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, आई एम मेकिंग इट ए हैबिट, 5 मिनट्स आई विल आस्क रैंडमली ओनली दिस थिंग। सर वो वाला लेक्चर का लिंक एक बार सर भेज दीजिएगा ना। ओके ठीक है, आई विल सेंड अगेन। तो खोजते खोजते पता नहीं कहाँ होगा सर। हाँ हाँ ठीक। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। सल्फाइड, ये आया सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड इज रिएक्टिंग विथ एसिड। ओके, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कि नीचे है? तो जब ये ऊपर है, ये रिएक्ट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस gas released is hydrogen sulfide gas. So if you react zinc sulfide with HCl, then you will get the rotten egg smell, gas of the rotten egg smell. Same thing is with iron sulfide. Iron sulfide reaction with sulfuric acid is going raised to iron sulfate plus H2S. बट यही अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे या नाइट्रिक एसिड लोगे तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2O SO2 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, रिएक्शन ज़्यादा, तो बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। हाँ, chlorides and nitrates. Chlorides and nitrates react with dilute sulfuric acid, dilute सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो H2O और क्या निकलेगा, SO2। ये जो है ना H2SO हाँ ये हाँ सर। अच्छा तो ये H2 का H2O बन जाएगा, S का SO2 बन जाएगा। ठीक है सर। और नाइट्रिक एसिड लोगे तो दूसरा वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला गैस निकलेगा, उधर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो हियर reaction with chlorides and nitrates. Barium chloride is reacting with sulfuric acid to form what kind of reaction will be there? Who will guess the products? प्रियो तो ट्राई करो, बोलो whether what kind of displacement reaction होगा, double displacement
सर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। बनाओ, तब फिर ये बेरियम डिस्प्लेस करेगा किसको? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर। Barium displaces hydrogen from its compound. सर हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके बेरियम बनाएगा हाँ सर। और ये हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन है, ये दोनों ये तो क्लोरिक एसिड बना। HCl बना देगा। ओके, ये आपका जो है बैलेंसिंग हो जाएगा। बेरियम सल्फेट इस फॉर्म से प्रेसिपिटेट PPT, इट फॉर्म से वाइट Yes. precipitate. So barium sulfate. Lead nitrate, yellow color, lead nitrate PbNO3 twice, nitrate NO3 minus nitrate, lead Pb2 plus, so it will be PbNO3 twice, lead nitrate. इस तरीके से लॉजिकली आपको करना है प्रैक्टिस, नहीं तो ये केमिस्ट्री आपका जो है ना वो बस झंडू बाम का डब्बा लेके बैठिए, जब भी पढ़ना होगा कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, चैप्टर 1 को हल्का मत लो, बार बार रिवाइज करो, और जो भी आप देखते हो सिंपल कंपाउंड्स देख रहे हो अभी, जैसे कि लेड नाइट्रेट है, तो इमीडिएटली आपके माइंड में सब चलते रहना चाहिए। ओके, नाइट्रेट NO3 माइनस है, पीबी लेड Pb2 प्लस है, तो Pb2 प्लस और नाइट्रेट, तो इस तरीके से कंपाउंड बना। चलिए ठीक है, H2SO4 SO4 2 माइनस, अच्छा प्लस H, इधर 2H प्लस निकलेगा, इसीलिए सल्फेट जो है SO4 2 माइनस। अच्छा ठीक है, इस तरीके से बेसिक्स पे ही ध्यान दो आप पहले। ओके, क्लास 10 में इधर उधर भागने का काम नहीं है, जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स। जैसे आप करते जाओगे तब आप और ज़्यादा चीज़ों को जो है ना आसानी से, आपके क्वेश्चंस भी वैसे नहीं रहते कि कोई हाई फंडा क्वेश्चंस उठा के ला रहे हैं, यू विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिक्स ओनली। सो लेड नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड to form the lead sulfate plus HNO3, that is the nitric acid. Okay, next, lead nitrate, if it is reacting with HCl, forms lead chloride, that is also precipitate. All of these are forming precipitates, and nitric acid. Chlorides and nitrates react only with concentrated H2SO4 on warming to liberate HCl and HNO3 respectively. So for example, if you are reacting sodium chloride with sulfuric acid, यानी नॉर्मल नमक ले लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, रिएक्शन नहीं होगा। आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको जो टेम्परेचर है वो अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप देंगे, गरम करना है टेस्ट ट्यूब को। तब क्या होगा, तब रिएक्शन होगा, ये सोडियम इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। ओके, कंडीशंस के ऊपर भी रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। तो सर टोटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। हाँ सर। NaCl ले लिए, टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डाल दोगे, कुछ नहीं होगा। आपको टेस्ट ट्यूब में एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना है और उसको वार्म करना है। वार्म इट, गिव इट सम टेम्परेचर दैट इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। ओके, तो उस तरीके से जब हम लोग देते हैं, लगभग बॉइलिंग पे आता है, तब जाके रिएक्शन होगा और सोडियम बाइसल्फेट। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ये स्टेबल है कि नहीं है? हाँ सर, सॉल्ट है, न्यूट्रलाइज्ड है। स्टेबल है, इसको क्या पड़ा हुआ है रिएक्शन करने का, उसको नहीं इंटरेस्ट है रिएक्शन करने का, वो स्टेबल है। आप जबरदस्ती दे दिया उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, ले सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा उससे, वो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। तब आप क्या करोगे, उसको एंकरेज करोगे, भैया कर दो थोड़ा रिएक्शन, कर दो थोड़ा और गर्म करोगे, गर्म किए थोड़ा सा, तब अच्छा जब इतना बोल रहे हो तो एक हाइड्रोजन, तो सोडियम बाइसल्फेट, एक HCl, क्योंकि स्टेबल है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहता है। अब वही जो है आप सेम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं और
ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप लगाते हो तब कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर देगा सोडियम सल्फेट and 2HCl. Okay, so you are encouraging the reaction to completion by providing more energy. Okay, by boiling what you are doing, you are giving more energy for the reaction, you are encouraging it to take place. Okay, same reaction you can repeat with potassium nitrate. So when we react with potassium nitrate, okay, H2SO4, potassium nitrate is also stable salt like sodium chloride. So below 200 degree centigrade, little bit when you are warming, then it will replace only one hydrogen from this one to form potassium bisulfate and HNO3 will be formed. Okay. पूरी कहानी केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी 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 electrons in the valence shell, valence electrons, electronic configuration, इसी के ऊपर चलता है. Okay. स्टेबिलिटी रिएक्शन करना है अगर स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगा फिर भी उसको रिएक्टिंग करने के लिए आप जो अड़ गए हो तो दीजिए कंडीशन और टेम्परेचर दीजिए ये वो दीजिए तब जाके उसको बॉन्ड्स में और ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा अनस्टेबिलिटी आएगा तब जाके रिएक्शन करेगा. पोटेशियम सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड. So we have seen 6 different types of reactions of the acids. Okay, chemical properties of acids, 6 different reactions. अब आप ऐसे अभी समझने के लिए हमने इस तरीके से देखा. आप क्या करोगे पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ोगे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा आपको दिक्कत होगा. तो करना क्या है आपको ऐसे बनाइए नोट्स टाइप में बनाइए. सेंटर में एसिड रहेगा लिख देंगे आप इसमें एक तो है HCl. ओके H2SO4 ओके बट नॉट HNO3. ओके इधर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं जैसे HNO3 लिखिए काम हो जाएगा करके. अब अलग अलग डायरेक्शन में बनाइए. एक तो हो गया आपका रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स. दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस तरीके से बनाने में फ़ायदा ये है कि आपको रिवीजन करते समय एक ही पेज में रिएक्शंस का जो भी है स्नैपशॉट मिल जाता है तो आप क्रिटिकली एक दूसरे को कंपेयर करके याद रखने में आपको आसानी होगा. लेकिन हमेशा याद रखिए केमिस्ट्री में जब तक लिख के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ काम आने वाला नहीं है. चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल था. पीरियोडिक टेबल में केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस नहीं थे. उसके बाद वाले जो चैप्टर है ओके नाउ वी हैव सीन दिस एसिड बेसिस. ओके केमिकल बॉन्डिंग इज देयर. केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको उतना कोई इक्वेशंस वगैरह नहीं है वो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. ओके सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 क्या है लॉजिकल है पॉइंट्स है इसमें. चैप्टर 3 से आपके इक्वेशंस शुरू हो रहे हैं. ओके इक्वेशंस लॉट ऑफ इक्वेशंस आर देयर. आपने जो भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा उसके जो कंपाउंड्स हैं ये सब का एप्लीकेशन है. ठीक है तो नेक्स्ट वीक में यू विल हैव इन केमिस्ट्री द सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट लेंगे. केमिकल बॉन्डिंग के साथ आपके कुछ क्वेश्चन चैप्टर 1 के भी रहेंगे यानी पीरियोडिक टेबल वाले भी रहेंगे. ओके तो इस तरीके से आगे हर वी विल मेक इट ए प्रैक्टिस. आपको कैसा लग रहा है? डू यू थिंक दिस इज ए गुड एक्सरसाइज? शुड वी हैव टेस्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. संडे इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू या हम आपको लगता है कि संडे तो एक दिन नहीं सर संडे ठीक है सर. No, sir, not Sunday. सर संडे थोड़ा सा हाँ सर. एक दिन मिलता है. ओके संडे आई पर्सनली माई सेल्फ डोंट आई डोंट हम
ऋषभ डू योर सेल्फ रिवीजन, आप अपना रिवीजन कीजिए, ये सब चीज़ कीजिए, ये मैं एंकरेज ही करता हूँ, उसमें बात नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करके क्या करेंगे कि सैटरडे, सैटरडे क्या संभव है? हाँ सर, यस सर। सर 9 बजे दिन में या 10 बजे? सर 10 से 11 नहीं तो 11 से 12 दिन में हो जाएगा। दोनों आपका टेस्ट होगा और जो प्रीवियस चैप्टर रहेगा उससे एक 10% क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। ओके ओके, यू प्रिपेयर। सर इसी वीक में सर कीजिएगा टेस्ट सैटरडे को। ठीक है सर। जैसे कि अभी ये एसिड बेसिस, तो सर हम लोग सर एवरी मंडे करते हैं सर, संडे को जो टाइम मिलेगा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। okay, time what you want to do you discuss among yourself and you let me know. Okay, according to that I will put it up. But I don't want the regular class to get disturbed, means disturbed वाली बात ना, दो क्लास इसमें जाएगा, एक क्लास तो आप टेस्ट लिख दोगे और दूसरा टेस्ट है कि टेस्ट के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, केवल कुछ नंबर आप देख लोगे तो उससे कोई फायदा, कोई इम्प्रूवमेंट होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो नंबर कम आए ज़्यादा आए दैट्स नॉट अ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अगली बार आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि पिछली बार ऐसी गलतियां मेरे से हुई, अगली बार मेरे से ये वाला टाइप का गलती नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी द थिंग। ऐसा कर सकते हैं कि आप सैटरडे को मैं आपको पेपर दे दूं और कोई मतलब अदर देन क्लास टाइम में दे दूंगा, और मंडे को जो है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, आप लोग देख लो, आप लोग भी देख लो, आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।